Hello friends, this is Ashok Rival. I welcome you all in A. Rival's classes. Friends, as you know, today it was your exam of 10th class, CBSE Board, Communicative English, 10th class. So today we have this set 1, as the paper was divided in 3 sets, set 1, set 2 and set 3. So this is set 1 and we are going to discuss the complete solution of this paper. Basically, we'll discuss here the reading section and writing section, means and grammar only, and then short questions of literature too. So let's go without wasting much time. We'll discuss here about the reading section. So this is reading section, set A. The question I'll show you. How did the desert greet the narrator? First question. Though I would say it was quite easy paper. बहुत easy था ये paper. और क्वेश्चंस कुछ डायरेक्ट थे इसमें. सो द क्वेश्चन इज हाउ डिड द डेजर्ट ग्रीट द नरेटर. स्टूडेंट्स, अच्छा ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करने थे. आई होप यू हैव रिटन इट. सो आंसर इसका यहाँ पे बनता है कि डेजर्ट ने उनको कैसे ग्रीट किया. सो डेजर्ट्स ऑप्रेसिव हीट ग्रीटेड अस वार्मली आउटसाइड इज. सो इट वाज ग्रेट हीट ओवर देयर. सो डेजर्ट ग्रेटेड देम. हाउ डिड है तो पास्ट टेंस आपने लिखना होगा. ग्रेटेड देम विद क्वाइट हीट, बहुत तेज गर्मी थी वहां पे. विद दैट दे दैट ग्रेटेड देम, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द नरेटर फील ग्रेटफुल टू प्रजापति. प्रजापति के नरेटर ने ग्रेटफुल, आभारी कैसे फील किया. द क्वेश्चन इज हियर दैट एज दे वर थर्स्टी एंड दे फेल्ट ग्रेटफुल बिकॉज ही गेव देम कप ऑफ दैट कोल्ड वाटर. सो दैट्स व्हाई दे फेल्ट ग्रेटफुल, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज प्रजापति बीमिंग विद प्राइड. क्यों उसका चेहरा प्राइड से बीमिंग कर रहा था, चमक रहा था. बिकॉज इन दिस हॉट सीजन ही हैड सम कोल्ड वाटर फॉर देम. दिस इज द आंसर. हैव कोल्ड वाटर फ्रॉम माई फ्रिज. ही हैड अ फ्रिज हियर. दैट्स वाई ही वॉज फीलिंग प्राइड and he has cold water for them. That's why. This is the answer. So you need to write it in a sentence. आपको बना के लिखना था वो, right? Why was next question है question number 4. What made the narrator feel confused? Narrator confused किस बात से हुआ? So because he was confused. See, there was nothing at all. कुछ नहीं था वहां पे. इतनी तेज गर्मी थी और उस तेज गर्मी में उनको ठंडा पानी मिला नरेटर को. That's why. See, baffled means baffled. We looked more closely at the tetra box. So baffled, confused. Direct यहाँ से आंसर नहीं बनेगा. Answer was that because there was no electricity, no other battery, and the water was quite cold. So this was the answer, right? Next question is why did Prajapati call his fridge mitti cool? उसके फ्रिज को मिट्टी कूल क्यों कहा उसने? So mitti cool. The answer is here. Prajapati explain how this clay fridge mitti cool works. क्योंकि because that was made of मिट्टी and that produced the water cool. तो इसलिए मिट्टी cool उसने word उसके लिए यूज किया, right? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द क्ले फ्रिज वर्क. क्ले फ्रिज कैसे वर्क करता है? ये एफ डायरेक्ट आंसर इज हियर. द वाटर फ्रॉम एन अपर चैम्बर seeps through the side walls, cooling the lower chamber through evaporation. So this all was to be written as an answer, right? Why is this fridge called an ingenious invention? Ingenious invention क्यों कहा उसे? First, let me tell you, ingenious means very clever invention. बहुत स्ट्रीक और काफी अच्छा invention, cleverly बनाया हुआ. क्यों कहा उसे? So the answer is given here. Because this fridge consumes no electricity, is 100% biodegradable, and produces zero waste during its lifetime. That's why it was ingenious invention, right? The next question is how did the fridge look? The direct answer is the fridge looked like a terracotta box. टेराकोटा बॉक्स लाइक क्ले, मिट्टी का बना हुआ एक जो मटका टाइप का होता है, लाइक दैट, राइट. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब प्रजापतिज लैब. प्रजापति की लैब कैसी थी वो आपने डिस्क्राइब करनी है. तो ये रहा यहाँ पे हिज R&D लैब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब इज सिंपल ओपन एयर रूम विद क्ले वेरियस ट्रेज अरेंज्ड इन दिस. सो दिस वाज द आंसर, राइट. नाउ वी गो टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन. और क्वेश्चन सेकंड के जो आंसर्स हैं यहाँ पे मैं पहले डिस्कस करता हूँ. क्वेश्चन व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अ स्ट्रीमिंग.
सो इट वाज ऑल अबाउट द फूड एंड द मेथड्स ऑफ फूड, वेरियस काइंड्स ऑफ मेथड्स दिए गए इसमें, खाने को कैसे बनाया जाता है, कैसे पकाया जाता है अलग अलग तरीके से। तो स्टीमिंग के एडवांटेजेस दिए हैं और इट वाज क्वाइट इजी दैट स्टीमिंग जो है यहाँ पे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स आर ये सारे इसमें रह जाते हैं, आर लाइकली टू बी लॉस्ट और रिड्यूस्ड इन सम अदर वेज ऑफ कुकिंग। तो स्टीमिंग में ये रिटेन रह जाते हैं, ये रह जाते हैं। दिस वाज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। रोस्टिंग के प्रोसेस, क्योंकि फर्स्ट में स्टीमिंग के बारे में बताया गया, सेकंड वन में रोस्टिंग के बारे में बताया गया। द वेरी फर्स्ट लाइन, रोस्टिंग इज अ कुकिंग मेथड फॉर मीट्स एंड वेजिटेबल्स इन एन ओवन और एन अनकवर्ड पैन यूजिंग वेरी हाई हीट। तो ये आपका रोस्टेड जो आंसर था डायरेक्ट। हाउ कैन वन प्रिपेयर वेजिटेबल स्ट्यू? वेजिटेबल स्ट्यू कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? डायरेक्ट आंसर इज गिवन, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर वेजिटेबल स्ट्यू वी कैन यूज कैरेट्स। तो ये सारी चीजें डायरेक्ट आंसर यहीं पर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द ग्रिलिंग डिफरेंट फ्रॉम सोटिंग, राइट? सोटिंग से ग्रिलिंग कैसे डिफरेंस है, वो भी आंसर इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, बट वो आपको बना के लिखना था। ग्रिलिंग इज कुकिंग ओवर एन ओपन फायर ऑफ बर्निंग कोल्स, ये है, और सोटिंग यहाँ पे मीन्स टू कुक फूड इन सम फॉर्म ऑफ फैट इन शैलो पैन। तो ये इसके आंसर्स रहेंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मैरिनेटिंग फूड। मैरिनेटिंग फूड का जो प्रोसेस है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मैरिनेटिंग फूड, वो दिया हुआ है। सो आंसर इज हियर, सी दिस। कैसे करते हैं मैरिनेट इसको? मिक्सचर ऑफ हर्ब्स, स्पाइसेस एंड सम अदर एसिड लाइक वाइन, विनेगर और सिट्रस जूसेस, ये मिला जाते हैं। तो दिस इज द आंसर, राइट? और ये जो ब्लैंक्स हैं वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट थे। ग्रिलिंग इम्पार्ट्स द स्मोकी फ्लेवर फूड, बिल्कुल दिया हुआ है, और टोमेटो स्पाइसी, ये भी डायरेक्ट था, और एक्सपेरिमेंट, ये आंसर है। कैप की जहां तक बात करते हैं, गिव मीन्स पैरा नंबर 2 में, पैरा नंबर 2 में जो गिव था वो मैं आपको दिखाता हूं, विच मीन्स इम्पार्ट, कुकिंग इज अ फूड। दिस वन, पैरा नंबर 2 इम्पार्ट। आई होप यू ऑल हैव रिटन राइट वन, राइट? सेकेंड वन इज मेथड, मेथड इज पैरा नंबर 4, दैट इज टेक्निक। This one, technique, pair number 4. Having holes pair number 5, और pair number 5 में जो holes है ये perforated basket. So this is the pair number 4, right? अब आपको डायरेक्ट में लेकर चलता हूँ राइटिंग्स के लिए। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट ग्रामर की, राइट? और सेट 1 की जो ग्रामर है वो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे। एक्सरसाइज इज हॉट वेदर इज द बेस्ट अंडरटेकन इज अ शेड एक्सपोजर, इज आएगा यहाँ पे। सेकेंड वन इज एक्सपोजर टू डायरेक्ट, 2 है इसका आंसर। थर्ड वन इज प्रोटेक्ट, एयर कंडीशनिंग प्रोटेक्ट हीट इंजरी, प्रोटेक्ट्स आएगा यहाँ पे, हीट इंजरी से प्रोटेक्ट करते हुए हमें। नेक्स्ट वन, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू वाइप ऑफ द स्वेट, एक्सेसिव स्वेटिंग कैन कॉज, ये रहेगा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ये था। इसमें आपको जो बीच में जो मिसिंग वर्ड था वो लिखना था। मधुबनी पेंटिंग इज वन ऑफ द मैनी ट्रेडिशनल, वन ऑफ जो मिसिंग था यहाँ पे, वन ऑफ द, तो यहाँ पे ऑफ दिया हुआ इन्होंने, एग्जाम्पल सोल्व करके दिया है। यहाँ पे इट इज, राइट? इट इज वेल नोन, और पास्ट में लिखते हो तो इट वॉज भी आ सकता है यहाँ पे। द पेंटिंग, अगर हमें दिस आर्ट वॉज डेवलप्ड, वही प्रेजेंट में इज और पास्ट में वॉज, तो वॉज डेवलप्ड भी आएगा यहाँ पे, आप वॉज ही लिखें, वॉज डेवलप्ड। सो एट मिथिला इन बिहार, तो इस यहाँ पे इन आना बीच में। एंड देन इट देन स्प्रेड टू द विलेजेस ऑफ मधुबनी, ऑफ आएगा यहाँ पे। और मधुबनी पेंटिंग्स आर पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया, ओवर आएगा यहाँ पे, राइट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी काफी इजी थे, आई होप आप लोगों ने सही लिखे होंगे। पंकज इज अ पॉपुलर एंड इनोवेटिव कोरियोग्राफर, राइट? पंकज इज अ पॉपुलर एंड इनोवेटिव कोरियोग्राफर, ये था आंसर इसका। सेकेंड वन है ही रन्स द डांस क्लासेस थ्रू आउट द ईयर, ही रन्स डांस क्लासेस थ्रू आउट द ईयर, ये रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है ही हैज हेल्प्ड टू पॉपुलराइज द कंटेम्पररी डांस, राइट? ही हैज हेल्प्ड टू पॉपुलराइज द कंटेम्पररी डांस, ये रहेगा। और नेक्स्ट है इसका ये, ही हैज इंडियनाइज्ड ऑल टेस्ट टू सूट contemporary dance, right? Next one is he has an experience of
more than 25 years. So these are the answers. ये डायरेक्ट आंसर्स थे फ्रेंड्स इनके. और ये नॉट मार्बल नॉट द गिल्टेड मॉन्यूमेंट, ये 55th सोनेट है विलियम शेक्सपियर की, जो उसने अपने एक फ्रेंड के लिए लिखी थी. कहीं कहीं स्टार है, ये व्यंग्य है उस टाइम की चीज़ों के ऊपर के ये जो मैनमेड चीज़ें ये लंबे समय तक नहीं रहती, बट द poem that is written by Shakespeare for his friend that will be everlasting. So name the poet. William Shakespeare है. Why were gilded monuments made? Gilded monuments in the memory of the people, और बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो बनाई गई थी उनके लिए बनाई गई थी. To whom was his powerful rhyme written? अपने फ्रेंड के लिए लिखी थी उसने. In the context of poem, what was made of marble? The marbles के जो स्टैच्यूज जो थे वो आप लिख सकते हैं, इसमें लिखे होंगे आप लोगों ने. So this is the answer. राइट. और दूसरी पोइम अगर आपने लिखा है ओ पार्डन मी, सो ये आपका जूलियस सीजर से लिया गया है. और डायरेक्ट इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे. हु इज द स्पीकर? एंटनी था. हु आर द बूचर्स मेंशन्ड हियर? जिन्होंने कॉन्स्पिरेटर्स के लिए कहा, जिन्होंने जूलियस सीजर को मारा था धोखे से. हु इज द ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ? तो ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ इज यूज फॉर जूलियस सीजर. एंड व्हाई इज द स्पीकर कॉलिंग हिमसेल्फ मीक एंड जेंटल? बिकॉज ही वॉज मीक एंड जेंटल, वो कुछ नहीं कर पाया था जूलियस सीजर के लिए. सो दिस वॉज ऑल क्वेश्चन. और ये शॉर्ट आंसर्स हैं. आई होप आप लोगों ने लिखे होंगे. ड्रैगन क्वेस्ट जो था वो रेस्क्यू प्रिंसेस को बचाना था, और उसके बाद उस जो बीस्ट था उसका खजाना लेकर सेबेस्टियन को फर्दर बचाना था. पिटल बाबू एक पेडेस्ट्रियन था जो हाफ माइंडेड, एब्सेंट माइंडेड आप कह सकते हो, जो हीरो से टकराता है एक बार पढ़ते हुए. लेविनिया फील, उसको लगा कि ये उसको काफ़ी सारी और आइडियाज देगी गो स्टोरीज के लिखने के लिए, इज अबाउट वो स्पिरिट से बात कर सकेगा. राइट. तो ये दो पॉइंट के थे, आपको शॉर्ट ही लिखना था. डिस्क्राइब द अर्ली मॉर्निंग सीन. अर्ली मॉर्निंग काफ़ी अर्ली जाता था, वो दिन मुश्किल से निकला भी नहीं होता था, स्टार्स अभी गए भी नहीं होते थे, तो उस तरीके से वो काफ़ी बाइटिंग कोल्ड होती थी, वहाँ पे हो जाता था. और ये जो क्वेश्चन है आपका स्नेक से लिया गया है. तो क्यों एक्सपीरियंस जो कन्फ्लिक्टिंग क्यों था पोइट का? पोइट सेज हियर के जो उसकी एजुकेशन है दैट सेज कि उसे सांप को मार देना चाहिए, लेकिन जो उसकी इंस्टिक्ट है, उसके अंदर फीलिंग्स हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, वो फील करते कि नहीं, यू आर अ सेकंड कमर, यू शुड वेट. तो ये उसका डिलेमा था, कंफ्यूजन था उसके इमोशंस के बीच में. राइट. सो ऑल दीज अबाउट द क्वेश्चंस. ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ये आपकी नॉवल से क्वेश्चंस आप लोगों ने लिखे होंगे, आई होप. सो इट वाज ऑल क्वाइट इजी आपका पेपर. होप यू लाइक्ड इट. इफ यू लाइक्ड इट, to share it with your friends and subscribe our channel, because after these solutions we are going to discuss and we are going to bring many more teaching classes for English that would be quite beneficial for you. Till then, thank you. Bye bye.